کہ جنازے کو دیکھ کر مسکرایا۔ ایک بزرگ بولا بیٹا جوان جنازے میں مسکرایا نہیں کرتے۔ جوان نے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا کیا بتاؤں بابا، دل تو خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن دوست سے وعدہ کیا تھا جب دبئی سے آؤں گا تو ہم مسکراتے ہوئے ملیں گے، جب بھی ملیں گے انشاءاللہ مسکراتے ہوئے ملیں گے۔ اس دوست نے بھی مجھے کہا تھا ٹھیک ہے جب میں مر جاؤں گا جب میرے پاس آنا تو مسکراتے ہوئے آنا روتے ہوئے نہ آنا، کیونکہ اس وقت یار کے آنسو پوچھنے کے لیے میرے ہاتھ نہیں ہوں۔ اس وقت یار تو مجھے دیکھ سکے گا، میں نہیں دیکھ سکوں۔ زندہ لوگوں کی قدر کریں صاحب، مرنے کے بعد تو دشمن بھی چہرہ دیکھنے آ جاتے ہیں۔ ایک غازی کا کسی مشرک سے مقابلہ ہوا، کافی دیر تک لڑائی میں مصروف رہے، جدال و قتال میں مصروف رہے۔ نماز کا وقت آیا، غازی نے کہا مشرک مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دو، میں اللہ کو سجدہ کر لوں، اللہ کے حضور جھک لوں، میں نماز پڑھ لوں۔ مشرک نے اسے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دی۔ مشرک تلوار اٹھا کے ایک سائڈ میں بیٹھ گیا۔ غازی نماز پڑھنے لگا، اللہ کے حضور جھکنے لگا، اس نے قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر جدال و قتال میں مصروف ہو گئے۔ اتنے میں مشرک کی پوجا پاٹ کا وقت آیا، مشرک کی عبادت کا وقت آیا۔ مشرک نے کہا اب میری عبادت کا وقت آ گیا ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دو، میں بھی پوجا کر لوں، میں بھی عبادت کر۔ غازی نے مسلمان نے اسے مہلت دے، اب وہ پوجا پاٹ میں مصروف ہو گیا، عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اتنے میں شیطان آیا، غازی کو کہنے لگا وقت آ گیا ہے کامیابی کا، وقت آ گیا ہے نصرت کا، اٹھو تلوار اٹھاؤ، یہ عبادت میں مصروف ہے، پوجا پاٹ میں مصروف ہے، اس کا کام تمام کر دو، اس کا سر تن سے جدا کر دو، اس کا سر اڑا دو، کامیاب ہو جاؤ، غازی بن کے نکلو۔ ایک دم غیب سے آواز آئی نہ غازی نہ، عبادت کی حالت میں اسے مت مرنا، اگر ایسا کرو گے تو تم ہار جاؤ گے، مشرک جیت جائے گا، ایسا کرنے میں تمہاری کامیابی نہیں ناکامی ہے، شیطان کی بات مت ماننا۔ عبادت کے دوران اسے کچھ بھی نہ کہنا، اس لیے کہ نماز کے دوران اس نے بھی تجھے کچھ نہیں کہا۔ غازی نے شیطان کے منہ پر لعنت ماری۔ مشرک جیسے ہی عبادت سے فارغ ہوا، پوجا پاٹ سے فارغ ہوا، پھر جدال و قتال میں مصروف ہو گئے، کافی دیر تک لڑائی چلتی رہی۔ اتنے مشرک کو غازی کی تلوار کی چھوٹی سی نوک لگی، اسے چوٹ لگی، زمین پہ گرا، گرتے ہی اس نے کہا پانی دو، اس نے کہا پانی دو۔ مسلمان نے اپنی تلوار پھینک دی، غازی نے اپنی تلوار پھینک دی، دوڑ کر گیا، پانی لے کر آیا، مشرک کو پانی پلانے لگا۔ جب مشرک نے پانی پیا، غازی کو تک کر دیکھ کے کہنے لگا غازی تیرا تو حق تھا، تو مجھے ترسا کے مارتا، تو مجھے پیاسا مارتا، تو مجھے بھوکا مارتا، مجھے ذلیل و خوار کر کے مارتا، تیرا مقصد ہی مجھے مارنا ہے اور میرے مارنے میں ہی تیری کامیابی ہے، تو الٹا مجھے پانی پلا رہا ہے، تو الٹا مجھے ٹھنڈا پانی پلا رہا ہے۔ غازی نے آگے جو جواب دیا، مشرک کی زندگی بدل کے رکھ دی۔ غازی نے کہا میرے نبی نے فرمایا تھا تجھے مارنے میں مجھے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب تجھے پانی دینے میں ملے گا، تجھے مارنے میں میری کامیابی نہیں ہے جتنی تجھے پانی دینے میں میری کامیابی، جتنی تیری پیاس بجھانے میں میری کامیابی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اتنا ثواب تجھے مارنے میں مجھے نہیں ملے گا جتنا ثواب تجھے پانی پلانے میں ملے گا، جتنا ثواب تیری پیاس بجھانے میں ملے گا۔ یہ سنتے ہی مشرک مسلمان غازی کے قدموں پہ گرا، قدم چوم کر کہنے لگا مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، تو بھی سچا ہے، تیرا نبی بھی سچا ہے، تیرے نبی کا دین بھی سچا، تیرے نبی کا بیان بھی سچا، تیرے نبی کا فرمان بھی سچا، مجھے اس نبی کا کلمہ پڑھا دو جو نبی کافروں کا اتنا خیال رکھتا ہے، جو نبی مشرکوں کا اتنا احساس کرتا ہے، وہ نبی اپنوں کا کتنا احساس کرتا ہو، جو دین کافروں کا اتنا احساس کرتا ہے، وہ دین اپنوں کا کتنا احساس کرتا ہو۔ صاحب دین اتنا تلواروں سے نہیں پھیلا جتنا احساس سے پھیلا ہے۔ ایسے ہی ایک شخص ایک عورت سے نکاح کر کے شادی کر کے عورت کو گھر لے کے، جیسے ہی عورت گھر آئی، عورت نے سارے گھر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان پریشان ہی پریشان حال دکھائی دینے لگا، رحمت کے فرشتے روٹ گئے، اس بدبخت عورت کے آنے سے رزق دینے والے فرشتے روٹ گئے۔ اب گھر میں رہنے والا ہر ایک انسان دن بدن زوال کی طرف جاتا گیا۔ جیسے ہی اس عورت نے اس گھر پر قدم رکھا، اللہ اکبر، اس شخص کا جو باپ تھا وہ بیمار ہو گیا، بیماری دن بدن بڑھتی گئی۔ اب یہ بڈھا شخص کھانستا تھا، باپ کھانستا تھا، تو اس کی بیوی کو بڑی ہی تکلیف ہوتی تھی۔ نوجوان کی بیوی نے ایک دن کہا کہ باپ کی چار پئی کو اندر سے اٹھا کر باہر برآمدے میں رکھ، یہ بڈھا کھانستا ہے، جراثیم پھیلتا ہے، بڈھا کھانستا ہے، کورونا پھیلتا ہے، میں تو اس کی کھانسی سے بابا تنگ آ گئی ہوں، اس زندہ لاش کو اٹھاؤ باہر برآمدے میں رکھ۔ کچھ دن باپ باہر برآمدے میں پڑا رہا، اس کے بعد بیوی نے خواہش ظاہر کی کہ اگر مجھے اس گھر میں رکھنا ہے تو اس باپ کو اٹھاؤ جا کے دریا میں پھینکا، دریا میں پھینک آؤ، ٹھیک ہے، نہیں تو میں تو بابا اس گھر سے جا رہے ہیں۔ اب بیوی کی خواہش پر بیٹے نے کیا کیا، رات کا دوسرا پہر ہے، اس بدبخت اور بدقسمت بیٹے نے باپ کو اٹھایا، کہاں جا رہا ہے؟ دریا میں ڈالنے جا رہا ہے۔ کس کی خواہش پر؟ بیوی کی خواہش۔ وہ بیوی جو بد کردار ہے، وہ بیوی جس کا شیطان کے ساتھ گہرا تعلق، وہ بیوی جس نے گلی محلے میں رہنے والی عورتوں کا جینا حرام کر رکھا ہے، جو بدتمیز ہے، جو غیبت کرتی ہے، جو بد اخلاق ہے، وہ تو جہنمی ہی
जहन्नमी है। अब उस जहन्नमी बीवी की ख्वाहिश पर इस बदबख्त और बदकिस्मत नौजवान बेटे ने क्या किया, रात के दूसरे पहर बाप को अपने कंधे पे उठाया, दरिया की तरफ चल दिया। दरिया के अंदर इसने कदम रखा, जैसे ही पानी इसके कंधों तक आया, बीमार बाप को दरिया के अंदर फेंकने ही वाला था कि बाप बोल ही पड़ा, बेटे मुझे यहाँ मत फेंको, मुझे यहाँ ना फेंको, 2 कदम आगे करके फेंको। बेटे ने कहा, बाबा 2 कदम आगे करके फेंकने की वजह ही क्या है, जब आपको मारना ही, जब आपको दरिया में ही फेंकना है, फिर 2 कदम आगे क्या, 2 कदम पीछे क्या? नहीं बेटे, इसमें भी कोई हिकमत है। बेटे ने कहा, बाबा जी बताएं कौन सी हिकमत है? कहा, बेटे मैंने अपने बाप को इस जगह में फेंका था, मैंने अपने बाप को इसी जगह पर फेंका था जहां तुम मुझे फेंकने आया। मैं चाहता हूं मुझे 2 कदम आगे करके पानी में डाल, आगे करके पानी में फेंक, ताकि तेरी औलाद जब आए, तेरी औलाद जब जवान हो ना, वो तुझे 2-4 कदम और आगे करके दरिया में डाले। हाय हाय, बाप के इस जुमले ने बेटे की जिंदगी बदल के रख दी। ये तो नस्ल दर नस्ल से चला आ रहा है। फिर मैं इस सिलसिले को खत्म न कर, अब ये बदकिस्मत नौजवान, बदकिस्मत बेटा खुशबख्ती में तब्दील हो गया था, अपने बूढ़े बाप को घर लेके आया। इसने घर आकर कमरे के अंदर बूढ़े बीमार बाप को सुलाया, अब उसकी खिदमत की, उसकी नौकरी की, अल्लाह रसूल को राजी किया। एक शख्स था अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत किया करता था, बदकिस्मती से उसकी बीवी को जल्द की बीमारी लगी। अब दिन ब दिन उसकी खूबसूरती बदसूरती में ढलती गई। दूसरी मुसीबत उस पर यह आन पड़ी कि किसी हादसे पर वो शख्स बीनाई से महरूम हो गए, नजरों से महरूम हो गए। अब दोनों मियाँ बीवी इस हाल में गुजर बसर कर रहे थे। बीवी की ये जल्द की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती गई। वो इतनी बदसूरत हो बैठी कि कोई भी शख्स उसे देखना गवारा नहीं करता था। अब सारा जहान उसे देखना गवारा नहीं करता था, कराहत करता था। एक उसका शोहर ही था जो बिस्मिल्लाह पढ़ के लुकमे तोड़ तोड़ के उसके मुंह में डालता, उसे खाना खिलाता, उसे पानी पिलाता। वो सोचती, अगर ये मेरा शोहर अंधा ना होता तो ये मेरे साथ कभी भी ना रहता, मुझे छोड़ देता, मुझे तलाक दे। मालिक शुक्र है तेरा कि इस हाल से पहले पहले तूने मेरे शोहर को नबीना कर दी। मेरा शोहर अगर इन आंखों से मेरी ये बदसूरती एक बार भी देख लेता, मुझे अपने साथ ना रखता। वक्त गुजरता गया, जिंदगी का सूर्य ढल गया। इस शख्स की ये बीवी फोत हो गई, इसका इंतकाल हो गया। उसकी जुदाई में, उसके सदमे में शोहर ने अपना सब कुछ फिरोख्त कर दिया। ये शहर छोड़कर दूसरे शहर जाने का फैसला किया। जब दूसरे शहर जाने लगा तो किसी ने रास्ते में आवाज लगाई, ओ अंधे, ओ नाबीने, अब तक तो तुम्हारी बीवी तुम्हारी आंखें बनी हुई थी, वही तुम्हें पकड़ पकड़ कर चलाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, अब कौन तेरी फिक्र करेगा, अब अकेले कैसे रहोगे ओ अंधे? उस शख्स ने कहा, ओ भाई मैं अंधा नहीं हूँ, मैं अंधा बना हुआ था। ओ मुझे अंधा समझने वाले, मैं नबीना नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंखें काम कर रही है, देखो मैं नबीना नहीं हूँ, मैं नबीना बना हुआ था। कहा वो कैसे? कहा मियाँ मैं नबीना जानबूझकर ही बन गया था, वो इसलिए कि ये एहसास मेरी बीवी के लिए बहुत ही तकलीफ देह होता, बहुत ही तकलीफ देह होता कि मैं उसकी बदसूरती को देख रहा हूँ। मेरी बीवी डरती थी कि कहीं मेरा शौहर मेरी बदसूरती को न देखे, अगर इसने मेरी इस बदसूरती को देख ली है तो मुझे तलाक दे दे। मियाँ मैंने तो ये जानबूझकर ड्रामा रचाया हुआ था कि मैं अंधा हूँ, नबीना हूँ। बस ये एहसास मेरी बीवी के लिए तकलीफ देह होता कि मैं उसकी इस बदसूरती को देख रहा हूँ। ये कहते हुए वो शख्स चला गया। कुछ दिन बाद वो भी फोत हो गया। जब उसका इंतकाल हुआ तो खलकत उसे अल्लाह का वली कहकर पुकार रही थी। उसके मरने के बाद किसी ने ख्वाब में उसे देखा कि वो शख्स जन्नत की वादियों में घूम फिर रहा है, जन्नत में टहल रहा है। किसी ने पूछा, ओ मियाँ तू जन्नत में कैसे चला गया? कहा एक अमल की बदौलत अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दिया। कौन सा अमल था? ये वो वाला अमल था जो मैंने बीवी का दिल नहीं तोड़ा था, बीवी को वो तकलीफ नहीं दी थी कि मैं उसकी बदसूरती को देख रहा हूँ। बस यही अमल मेरे अल्लाह को इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने मेरे सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को बख्श। एक गरीब शख्स ने अपने घर के अंदर छोटी सी मस्जिद बनाई, 7 मुसल्लों वाली मस्जिद बनाई, क्योंकि उसके 7 बेटे थे। जब मस्जिद की तामीर का काम मुकम्मल हो गया तो उसने अपने 7 बेटों को बुलाया, 7 बेटों को इकट्ठा किया। कहा बेटो मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है कि इस मस्जिद की जो लिपाई है ना वो जन्नत की मिट्टी से करो। तुम 7 भाई अपने घर से निकलो, मुझे जन्नत की मिट्टी ला कर दो, मेरी ख्वाहिश है, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो। अब 6 भाई घर से बाहर निकले। कहाँ जा रहे हैं? जन्नत की मिट्टी तलाश करने जा रहे हैं। काम तो बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन बाप का हुक्म था, इनकार की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब 6 भाई घर से बाहर निकले, 7वां भाई घर में रहा इसलिए कि वो बीमार था। अब 6 भाई पूरा दिन ऐसे खाक छानते रहे, जन्नत की मिट्टी तलाश करते रहे। जन्नत की मिट्टी कहाँ से मिलनी थी? शाम को खाली हाथ वापस घर लौटे। क्या देखते हैं? छोटा जो भाई था ना, जो बीमार था, वो बोरी में मिट्टी भर के बैठा है। बाप ने पूछा, ओए जो तलाश करने गए थे उनको नहीं मिली, तूने जन्नत की मिट्टी घर बैठे बैठे कहाँ से हासिल कर ली? कहा बाबा बोरी उठाकर अपनी माँ के पीछे पीछे भागता रहा, जहां जहां मेरी माँ चलती गई वहां वहां की मिट्टी उठाकर बोरी में डालता गया। बाबा ये वही जन्नत की मिट्टी है जिस मिट्टी की आपको जरूरत है। बाप ने दूसरे बेटों को कहा, ओ नादानो तुम ऐसे ही पूरा दिन भागते रहे, जन्नत की मिट्टी तलाश करते रहे, तुम्हारी जन्नत तो तुम्हारे घर में बैठी है।
है जवानों, तुम्हारी जन्नत भी तुम्हारे घर में बेटी है। माँ के पैरों तले जन्नत है, माँ की कदर किया करो, बूढ़े बाप की कदर किया करो, अपने वालिदैन के आगे ऊंची आवाज में बात मत किया करो, ऊंची आवाज में बात मत किया करो। जिस दिन ये खामोश हो गए उस दिन तुम इनकी आवाज सुनने को तरसोगे। एक शख्स की इकलौती बेटी थी, बेटी की शादी के दिन करीब थे, उसने जहेज का सारा सामान मुहैया किया, बाप ने जहेज का सारा सामान इकट्ठा किया। जिस दिन बेटी की शादी थी, बेटी की बारात थी, एंड उसी दिन मौत के फरिश्ते ने हमला किया, बेटी की रूह निकाल के चला गया। उधर से बाराती बारात लेने के लिए घर से रवाना हुआ, एंड उसी दिन बारात के दिन जिस दिन बेटी ने रुखसत होना था, मौत के फरिश्ते ने हमला किया। उसने ना देखा ये खुशियों से भरा घर है, उसने एक पल में खुशियों को उजाड़ के रख दिया। मौत ने एक पल में खुशियों को गमगीनगियों में बदल के रख दिया, ना रहम किया। दूर से आने वाली बारात को किसी ने कहा तुम्हारी शादी बर्बादी में बदल गई, अब वो तुम्हारे लिए दुल्हन नहीं रही, घर में लाश पड़ी, घर में मैयत पड़ी। मुबारकबाद देने के लिए जो आए थे वो फातिहा पढ़ के जाने लगे, जनाजा पढ़ के जाने लगे। रोते हुए बाप की अचानक नजर जब मरी हुई बेटी के जहेज पर गई ना, तो उसने एक चीज की कमी महसूस की। तो रोते हुए बाप ने दुख भरे अंदाज में दो लफ्ज कहे, दो जुमले कहे, जिसे सुनने के बाद कलेजा फटने को आ जाता है। रोते हुए बाप ने कहा न आया याद ऐ आराम इस नामुरादी में, कफन देना तुम ही भूले थे हम सामान शादी में। हमने सब कुछ तो खरीद लिया था, हमने सब कुछ जहेज के लिए ले लिया था, लेकिन बेटी के लिए कफन नहीं लिया। एक आलिम दीन से पूछा गया आपने कभी अल्लाह के वली की जियारत की है? कहा लो जी, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले अल्लाह की वली की जियारत करके आया। कहा वो कैसे? कहा मैं कहीं गया हुआ था सफर, ट्रेन स्टेशन पे जब मैंने सामान उतारा, सामान उतारने के लिए मुझे एक मजदूर की जरूरत पड़ी। सारे मजदूर दौड़कर आ गए, मैंने देखा एक मजदूर था वो मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज में मशगूल है, वो नमाज में मशगूल है। मैंने कहा नहीं, मैंने काम इसी से करवाना है, मैंने काम इसी मजदूर से करवाना है जो नमाज में मशगूल। नमाज से फारिग होने के बाद मैंने कहा भाई तुझे पता भी है ट्रेन की आमद का वक्त है, तुझे मजदूरी मिलने वाली, तुझे पता भी है, उसके बावजूद भी तू नमाज में मशगूल हो गया। उसने कहा जो मेरे हिस्से का रिज़्क है मेरा मालिक मुझ तक जरूर पहुंचाएगा और हर हाल में पहुंचाएगा। उस नमाजी मजदूर ने कहा भाई जिस राज़िक ने आपको मेरे लिए इंतजार में रखा, जिस राज़िक ने आपको मेरे लिए रोके रखा कि तूने सिर्फ इसी से मजदूरी करानी है, तूने सिर्फ इसी को पैसे देने हैं, भाई उस मालिक को सजदा ना करते हुए मुझे शर्म आती है। क्या मुझे जचता है कि इतने प्यार करने वाले, मेरी इतनी देखभाल करने वाले रब को सजदा करने में देर करूं, ये मुझे नहीं जचता। एक रोती हुई खातून मौलवी साहिब के पास आई, कहा मौलवी साहिब अमीरी का जनाजा निकल गया, गुर्बत उरूज पर आ गई, मेरे बच्चे हैं, जब उनको खाने को कुछ नहीं मिलता तो रात को सोते वक्त वो बहुत ज्यादा रोते हैं। मौलवी साहब कोई ऐसा तवीज लिख कर दो कि मेरे बच्चे रात को भूख से रोया न करें। जैसे ही मौलवी साहब ने तवीज लिखा उसी दिन से उनके हालात बदलने लगे, उसी दिन से तरक्की होने लगी, दिन ब दिन तरक्की में जाता रहा। इतनी तरक्की हुई एक दिन ये लोग अमीर बन गए, अमीर बन गए। अल्लाह ताला ने रिज़्क से नवाजा, पैसे से नवाजा, दौलत से नवाजा। एक दिन ये खातून अपने महल के अंदर बैठी हुई, अचानक इसकी नजर उस संदूक पर पड़ी जहां इसने मौलवी साहिब का वो वाला तवीज संभाल कर रखा हुआ था। इसने सोचा क्यों नहीं तवीज उठा के देखूं तो सही कि आखिर मौलवी साहिब ने क्या लिखा था कि हमने इतनी जल्दी तरक्की कर ली। इस खातून ने तवीज उठाया, खोला, देखा, उस कागज के ऊपर ये एक जुमला लिखा हुआ था कि जब पैसों की रेल पेल हो जाए तो ये पैसा तिजोरी में छुपाने के बजाय ऐसे घर में दे देना हाँ रात को भूख की वजह से बच्चों के रोने की आवाज आती। खूबसूरत औरत थी, अल्लाह ने बड़े ही हुस्न से नवाज रखा था, बड़ी ही हसीन और जमील हुस्न की मलका शहजादी। जब वो मरी तो उसकी खूबसूरती बदसूरती में तब्दील हो गई। जब उसके जिस्म से रूह निकली ना तो लोगों ने देखा उसकी खूबसूरती बदसूरती में तब्दील हो गई। दीगर औरतों ने देखा, कहा ये तो नमाजिया औरत थी, नमाजें पढ़ा करती थी, कुरान पढ़ा करती थी, तहज्जुद गुजार औरत थी, इसकी खूबसूरत शक्ल को क्या हो गया है? ये तो वक्त था, इसकी पेशानी से इसके चेहरे से नूर चमकता, इसके चेहरे को क्या हो गया है? इसका खूबसूरत चेहरा बदसूरती में तब्दील क्यों हो गया? खैर उसको गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, जनाजा पढ़ाया गया। तदफीन के बाद काफी अरसा बाद किसी खातून ने उसे ख्वाब में देखा कि वो कब्र में चीखो पुकार कर रही, रो रही है, तड़प रही है, चीख रही है, कहती है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसने पूछा तू तो नमाज भी पढ़ती थी, कुरान भी पढ़ती थी, तहज्जुद गुजार थी, अच्छी औरत थी, मोमिना औरत थी, तुझे क्या हो गया है? अल्लाह ताला ने किस गुनाह की वजह से तुझे इतना बड़ा अजाब दे रखा है कि कब्र से तेरी चीखें निकल रही हैं? तो उस औरत ने कहा कि मैं सब कुछ करती थी, मैं कुरान भी पढ़ती थी, मैं नमाज भी पढ़ती थी, मैं तहज्जुद भी पढ़ती थी, लेकिन मैं पर्दा नहीं करती थी, मैं बंद संवार के बाहर निकलती थी।
मेकअप करके खूबसूरत सा चेहरा बना के गली से बाहर निकला करती थी, इस सोच की बुनियाद पर कि लोग मुझे देखें, जो एक बार देखे बार बार देखने की ख्वाहिश पैदा हो। बस इस सोच की बुनियाद पर मैं घर से बाहर निकलती। मेरा जो हुस्न था वो मेरे शोहर के लिए नहीं था, ये मेरी एक सोच थी। मेरा जो हुस्न था वो बाहर वालों के लिए, नामहरम लोगों के लिए था। मैं नमाज पढ़ती थी, नमाज मेरे मुंह पे मारी गई। मैं कुरान पढ़ती थी, मेरे मुंह पे मारा गया। अल्लाह ताला ने एक सांप की ड्यूटी लगा दी है। वो सांप रोजाना आके कभी मेरे गालों पे डंग मारता है, कभी मेरी पेशानी पे डंग मारता है, कभी मेरे होंठों पे डंग मारता है। वो नशीली आंखें जिस पे मैं बार बार इतराती थी, वो खूबसूरत चेहरा जिसमें मैं बार बार इतराती थी कि मेरा चेहरा कितना खूबसूरत है, कितना हसीन और जमील है, उस चेहरे को सांप डस रहा है। जो एक बार डसता है मैं 70 गज और जमीन के अंदर धंस जाती हूँ। मेरे लिए यही अजाब ही काफी। एक नौजवान था, वो औरतों की सोहबत में ज्यादा देर तक बैठा करता था और बैठने का शौक रखता था, आदी बन गया था। वो नौजवान नमाजी भी था, कुरान भी पढ़ता था, अल्लाह अल्लाह भी करता था, तहज्जुद गुजार नौजवान था। एक दिन उसके बाप ने कहा, बेटे औरतों की सोहबत में ना बैठा कर, दरमियान में शैतान बैठा होता है, वो दोनों को वर्गलाता है। दोनों को वर्गलाते एक दिन गुनाह करने पे आमादा कर ही देता है, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन। औरतों की सोहबत में बैठने की आदत ठीक नहीं है, ये तुझे दुनिया और आखिरत में तबाह बर्बाद कर देगा। उसने कहा, नहीं बाबा, मेरा दिमाग अल्हम्दुलिल्लाह पाक साफ, मेरा जहन पाक साफ है, मेरा दिल पाक है, मैं पाकीज़ा हूँ, नमाजी हूँ, परहेजगार हूँ, तहज्जुद गुजार हूँ, औरत की सोहबत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ती। अब बाप ने उसे प्रैक्टिकल तौर पे समझाना चाहा। बाप ने कहा, बेटे जाओ बाजार से 2 किलो साफ सुथरे सेब लेके आओ। नौजवान बेटा गया बाजार में, 2 किलो साफ और सुथरे सेब लेके आए। बाप ने कहा, अब जाओ 1 किलो गंदे गले सड़े सेब लेके आए। बाप के हुक्म को सब आंखों पे रखते हो दूसरी बार बाजार में गया, 1 किलो गंदे गले सड़े सेब लेके आए। अब बाप ने क्या किया, उसी के सामने उसे समझाने के लिए कहा, बेटा टोकरी लेके आओ। टोकरी लेके आ गया, 2 किलो साफ सुथरे सेब टोकरी में डाल, 1 किलो गंदे गले सड़े सेब टोकरी में डाल दिए। कहा, एक साइड पे रख दो, सुबह उठ के मैं आपको ये दिखा के कुछ समझाऊंगा, इससे सबक हासिल करें। अब नौजवान ने सुबह होने का इंतजार किया। सुबह का जैसे सूरज चमका, नौजवान ने कहा, बाबा टोकरी लेके आओ। कहा, ले। जब टोकरी लेके आया, टोकरी खोली, बाप ने बेटे को दिखाया कि वो जो गले सड़े किलो सेब थे ना, गले सड़े सेब थे ना, उन्होंने 2 किलो साफ सुथरे सेबों का भी बेड़ा गर्क कर रखा था। वो जो गले सड़े 1 किलो सेब थे, उन्होंने साफ सुथरे सेबों को भी खराब कर रखा था। ये दिखाते हुए फरमाया, बेटे तू कितना भी नमाजी क्यों ना बन जाए, तू जितना भी परहेजगार क्यों ना बन जाए, तू जितना भी तहज्जुद गुजार क्यों ना बन जाए, एक दिन आएगा औरत की सोहबत तुझे तबाह बर्बाद कर देगी। औरत की सोहबत जीत जाएगी, तू हार जाएगा। शैतान जीत जाएगा, तेरी परहेजगारी हार जाएगी। लिहाजा औरतों की सोहबत में ना